Chalo, let's start. Right? I hope you all are aware of what is NoSQL. If not, we will clear it today. And before starting off NoSQL, I just want to tell you that in the main InfyTQ exam, we are expecting at least two questions from NoSQL. Right? So total number of questions are 10 in DBMS in the main InfyTQ 2022. And out of those 10 questions, we are expecting at least two questions from NoSQL. Okay. And it's a very simple concept. So if you are all clear with the NoSQL part, then it will be a very easy for all of us to attempt those two questions and you will get 100% numbers for that. Okay. Today's topic is not only structured query language, which we call it as NoSQL, right? So before coming to NoSQL, let's start recall the relational data models. So as far as my relational data models are considered, so relational data models are those data models which have a structured schema, That means if we want to store any kind of particular information, so that information will be stored in the form of number of rows and number of columns. Suppose if there is a student and I want to store the information of that student, so that is student information will be stored in the form of columns and rows. So this is a table and here we are writing A, B, C. So let me make it as blue. So this particular section is known as a column, which in ER diagram we call it as an attribute. This is another column, right? And this is third column, right? And this is first row and this is second row. Okay. So in relational data models, our data is going to be stored in the form of a table, and that table is this one. So this table contains number of rows and number of columns. So if we are moving towards this particular relational model, so let's suppose we are considering this student table and we are going to consider this student table throughout my NoSQL theory part. Okay, so यहाँ पर हमारे पास एक table है and the name of the table is students. That student has three columns. One is student ID, which will be acting as a primary key. We have second column as name and we have third column as marks. Okay, this is first row, this is second row, and this is third row. So basically it is a relational data model where we have data stored in the form of a structure and that structure contains number of rows and number of columns. Okay, let's move to the non-relational data model part. So this non-relational data model says कि अब data तो मुझे store करना है, डेटा तो मुझे क्या करना है, स्टोर करना है, बट राइट नाउ डेटा इज नॉट गोइंग टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर, दैट मीन्स अभी जो हम रिलेशनल डेटा मॉडल में हम डेटा को स्टोर कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ रोज, और यू कॉल इट एज रिकॉर्ड और यू कॉल इट एज टपल. हम टपल भी बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, हम रो भी बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, और हम रिकॉर्ड्स भी बोल देते हैं. तो अगर मैं इन तीनों में से कोई भी फ्रेज यूज करता हूं, वेदर आई एम यूजिंग टपल, वेदर आई एम यूजिंग रो, और वेदर आई एम यूजिंग रिकॉर्ड्स, सो दे ऑल आर कंसीडरिंग माय नंबर ऑफ रोज. ओके, सो दिस नॉन रिलेशनल डेटाबेस बेसिकली क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, लेकिन डेटा को अब वो इस स्ट्रक्चर की फॉर्म में स्टोर नहीं करेगा, गिव मी अ मिनट. राइट. So as far as concerned, so I think the gist is clear that non-relational data model is going to store my data in the form of something else, but it is not a structured way as we are storing in the form of relational data model. Let's see one by one. Okay, so in this non-relational data model, we are going to consider these four types of models where we can store our data. So the very first model is key value data model, second is column based data model, third one is document based data model, and fourth one is graph based data model. Okay, now out of these four, we are going to discuss only this third section, document based data model. Why? Because in our exam, what has happened, we are going to have MongoDB. The question will be coming from MongoDB database. So MongoDB database is an example of document based data model. So we are going to discuss in great detail what is this document based data model. Okay, I hope so. We are going to discuss this MongoDB. अभी document based data model को दो तरीके से implement किया जा सकता है. एक तो होता है MongoDB और एक होता है CouchDB. There is another database which is known as CouchDB. लेकिन हम CouchDB नहीं पढ़ेंगे, हमारा मेन फोकस रहेगा MongoDB पे, क्योंकि हमारे InfyTQ में जो क्वेश्चंस आएंगे that are coming from
MongoDB part, right? So let's see this MongoDB in great detail. Okay, अब ये जो MongoDB है, इसमें जो भी हम इनपुट देंगे, इसमें हम सारा का सारा क्रिएशन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ JSON फॉर्मेट एंड BSON फॉर्मेट. ओके, JSON फॉर्मेट एंड BSON format. I hope you all are aware of what is this JSON. JSON is known as JavaScript object notation. JavaScript object notation, and this BSON is known as binary and extended JavaScript object notation. So ये JSON जो है ये प्राइमरी लेवल पे हम पढ़ेंगे और इसी का एडवांस पार्ट होता है BSON. That is known as binary and extended JavaScript object notation. Okay, so let's first of all before starting MongoDB हम थोड़ा सा एक JSON का कंसेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि हमें सारा का सारा जो भी कोडिंग लिखनी है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ JSON फॉर्मेट. ओके, सो व्हाट इज दिस JSON फॉर्मेट? JSON फॉर्मेट इज नथिंग बट इट इज अ ऑर्डिनरी स्ट्रिंग. ये कुछ नहीं होता, घबराना मत इससे. इट इज ओनली अ ऑर्डिनरी स्ट्रिंग. ठीक है, ऑर्डिनरी स्ट्रिंग जिसको हम लिखते हैं या जिसको एनक्लोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस. बस यही है सब कुछ और कुछ नहीं है. ठीक है, दिस ऑर्डिनरी स्ट्रिंग कैन बी दिस ऑर्डिनरी स्ट्रिंग कैन बी स्ट्रिंग, प्योर स्ट्रिंग हो सकती है डबल कोट्स में, ये नंबर भी हो सकता है, ये कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. ठीक है, ये आपका बूलियन वैल्यू भी हो सकती है. ठीक है, ट्रू और फॉल्स नल वैल्यू भी हो सकती है, और ये एरे भी हो सकता है. दिस वैल्यू कैन बी एनीथिंग. ओके, इनमें से कुछ भी हम JSON फॉर्मेट में लिख सकते हैं. आइदर इट कैन बी अ प्योर स्ट्रिंग, इट कैन बी अ नंबर, आई मीन इंटीजर, it can be any object, it can be a boolean value which is true or false, it can be a null value, or it can be array as well, right? So अब one by one हम इसको देखते हैं. ठीक है, so what is this JSON object as the definition says, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? JavaScript object notation. ठीक है, अब इसमें लिखते कैसे हैं? देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कुछ नहीं है, एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का जिसमें एक ऑर्डिनरी स्ट्रिंग होगी और जिसको कर्ली ब्रेसेस में हमें लिखना है. ठीक है, अब जब भी हम MongoDB पढ़ते हैं उसमें हम JSON पढ़ रहे हैं, तो JSON में हम एवरीथिंग हम वी आर कंसिडरिंग इट एज एन ऑब्जेक्ट. ये याद रखना, सब कुछ क्या है? ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है तो इसको लिखना तो हमें कैसे फॉर्म में पड़ेगा? स्ट्रिंग की फॉर्म में. और स्ट्रिंग में भी हम इसको मेंशन करके चलते हैं नेम वैल्यू पेयर. क्या करते चलते हैं? नेम वैल्यू पेयर. आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में हैशिंग पढ़ा होगा. ठीक है, और हैशिंग में आप लोग की वैल्यू पेयर आप लोग पढ़ के आए होंगे, तो बस ये वैसा ही है, नेम वैल्यू पेयर. ठीक है, तो अगर मुझे कोई सिंपल लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं. कोई एग्जांपल, सपोज मुझे नेम स्टोर कराना है, तो मैं क्या करूंगा? नेम मेरा हो जाएगा की, जिसको मैं बोल रहा हूं नेम, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी एक वैल्यू. सपोज वैल्यू हो गई, लेट्स सपोज इट्स अ स्ट्रिंग, लेट्स सपोज माय नेम अभिषेक, सो इट्स अ स्ट्रिंग. ठीक है, तो ये क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ JSON फॉर्मेट. इट्स अ काइंड ऑफ JSON फॉर्मेट जहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक JSON फॉर्मेट में मैंने एक ऑर्डिनरी स्ट्रिंग लिखी जिसमें स्ट्रिंग को मैंने लिखा इन द फॉर्म ऑफ नेम वैल्यू पेयर. नेम और वैल्यू के पेयर में हम इसको सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोलन मार्क्स, विद द हेल्प ऑफ कोलन मार्क्स. ठीक है, अब ये नेम एक स्ट्रिंग है जो हमेशा डबल कोट्स में आएगा, और ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है. जैसे मैंने आपको बोला था, ये वैल्यू कोई एक नंबर भी हो सकता है, ये वैल्यू एक प्योर स्ट्रिंग भी हो सकती है डबल कोट्स में, ये वैल्यू एक बूलियन नंबर भी, बूलियन वैल्यू भी हो सकती है, नल वैल्यू भी हो सकती है, एरे भी हो सकती है, कुछ भी ये हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज माई JSON, अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ JSON ऑर्डिनरी स्ट्रिंग. आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा. चलो, अब एक जो आपके सामने एक ये मैंने कोड लिखा है, इट्स अ सिंगल JSON ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसमें हमने क्या किया? देखो, कोई भी JSON स्ट्रिंग होगी वो स्टार्ट कहां से होगी? कर्ली ब्रेस से, ध्यान रखना हमेशा. और एंड कहां पे होगी? कर्ली ब्रेस से ही एंड होगी. ठीक है, अब इसमें ये पहला एक रोल नंबर क्या है? एक की है जिसकी मैपिंग हमने किससे की है? स्ट्रिंग से. तो ये रोल नंबर मेरा हो गया की, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कैसी है? वैल्यू है एक दोबारा से स्ट्रिंग, क्योंकि ये डबल कोट्स में है. अब आप इसको सिंगल कोट्स में भी रख सकते हैं, डबल कोट्स में भी रख सकते हैं, कोई भी कंपाइलेशन फॉल्ट नहीं आएगा जब आप इसको रन कराओगे. ठीक है, सेकंड मेरे पास है नेम. एक फील्ड क्या है मेरे पास? नेम. अब नेम के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया, फिर से एक ऑब्जेक्ट बन गया ना. देखो, ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है? कर्ली ब्रेसेस की फॉर्म में. यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर क्लोज हो गया. ठीक है, उसके अंदर हमने पहला फील्ड कौन सा लिया? फर्स्ट नेम एज मोहन, and second field as last name which has a value प्रसाद. तो फर्स्ट नेम की तरह काम कर रहा है, और सेकंड क्या है? ये वैल्यू क्या है? एक प्योर स्ट्रिंग है. ठीक है, फिर हमारे पास एक थर्ड की है मोबाइल, जिसकी मैपिंग हमने किससे की है? नंबर के साथ. फिर से हमारे पास यहाँ एक ऑब्जेक्ट आ गया, किस टाइप का? एक एड्रेस नाम का की है, और उसके अंदर मेरे पास
फिर से कुछ की वैल्यूज हैं। एक है हाउस नंबर जिसकी मैपिंग हुई है इंटीजर के साथ, एक सिटी है जिसकी मैपिंग हुई है स्ट्रिंग के साथ, पिन कोड है जिसकी मैपिंग हुई है किसके साथ, नंबर के साथ, और एक मेरे पास फिर से स्ट्रिंग है जिसकी मैपिंग हुई है की है ये मेरा की है स्टेट, और इसकी मैपिंग हमने की है किस वैल्यू से, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू से। अब मेरे पास एक नया ऑब्जेक्ट बना है स्कोर। अब देखो ये स्कोर एक ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये हमने एरे की फॉर्म में स्टोर किया है। किसकी फॉर्म में स्टोर किया है, एरे की। जब भी आप जेसन फॉर्मेट में एरे लिखोगे तो वो एरे लिखने का तरीका कैसे होगा, कोई भी आप नाम देंगे वैलिड वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने स्कोर दिया है, और ये कहां से स्टार्ट होगा करली ब्रेस से, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको जितनी भी वैल्यू रखनी है, दैट वैल्यू यू कैन पुट इन द टर्म्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट होगा और एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट होगा, ठीक है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कितने भी फील्ड्स रख सकते हो। जैसे एक आंसर ये हो गया कॉमा लगा के, मतलब आपको कुछ भी करना है, जिसको भी आपको जेसन का ऑब्जेक्ट बनाना है, वो ओपनिंग करली ब्रेस और क्लोजिंग करली ब्रेस के बीच में ही लिखा होगा, और होगा किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर, इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। देखो तो मैंने स्कोर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये क्या है, एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर मेरे पास दो फील्ड्स हैं, एक तो सब्जेक्ट है जिसका नाम है मैथ्स, और दूसरा स्कोर जिसका नाम है 23। तो देखो यही तो किया मैंने दो करली ब्रेसेस बनाए, एक ये बनाया एक ये बनाया। तो ये सिंपल क्या है, ये ऑर्डिनरी स्ट्रिंग है जो जेसन फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर रही है। सो जेसन फॉर्मेट इज नथिंग बट इट इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन वेयर वी आर गोइंग टू स्टोर आवर डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर और नेम वैल्यू पेयर, starting curly brace, closing curly brace, in between they all are separated with the help of a comma and that value can be anything। चलो अब हम जल्दी जल्दी और इलेबोरेट करके इसको पढ़ते हैं ताकि हमें क्वेश्चंस लगाने में इजी हो जाए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैं बता चुका, ओके फाइन। ये हो गया फर्स्ट नेम, ये हो गया आपका एड्रेस, एड्रेस की सारी वैल्यूज हो गई, स्कोर्स हो गया, ये हो गया कंप्लीट, ओके। अब हम आते हैं बेसॉन फॉर्मेट में। बेसॉन क्या बोला मैंने, बेसॉन बाइनरी जेसन, बाइनरी एंड एक्सटेंडेड, दैट मींस इट्स एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ जेसन, ठीक है। अब आप देखो बीसॉन और जेसॉन में जो फर्क है वो ये फर्क है कि हम क्या करेंगे, एज अ ह्यूमन इंडिविजुअल हम क्या करेंगे, हम अपनी जो स्ट्रिंग लिखेंगे या जो हम इनपुट देंगे वो जेसन फॉर्मेट में देंगे। मशीन क्या करेगी, उसको कन्वर्ट करेगी बीसॉन में, और वो कंप्यूटर उसको रीड करेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर हमेशा क्या करता है, जेसन फॉर्मेट को रीड नहीं करता है, कंप्यूटर हमेशा क्या करता है, बीसॉन फॉर्मेट को रीड करता है। अब हम बीसॉन फॉर्मेट के साथ हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में है, तो विद आवर नेकेड आइज वी कांट रीड इट, वी कांट रीड इट। तो हम क्या करेंगे, हम अपना फोकस सारा का सारा जेसन पे रखेंगे, क्योंकि हम लिखेंगे तो जेसन में ही, जेसन में जैसे हमने लिखा और उस क्वेरी को हमने एग्जीक्यूट करा तो वो जेसन से कन्वर्ट हो जाएगी बीसन में, और मशीन आंसर रिजल्ट कर देगी, मशीन क्या कर देगी, आंसर रिटर्न कर देगी। तो ये मशीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे जेसन को बीसन में कन्वर्ट करती है। तो हम तो सिर्फ क्या करेंगे, फॉर द सिंप्लिसिटी वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद जेसन, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ही ये है, वी आर नॉट कंसिडरिंग बेसन। बट इफ समबडी आस्क ए क्वेश्चन कि कैन वी राइट इट डाउन, तो हम लिख नहीं सकते हैं उसको, क्योंकि वी कैन नॉट विजुअलाइज और वी कैन नॉट रीड इट विद आवर नेकेड आई। सो वी कैन सिंपली राइट डाउन दैट स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ अ जेसन फॉर्मेट, राइट। अब इसमें जेसन के कंपैरिजन में बीसन में थोड़ी फंक्शनैलिटी भी बढ़ी हुई होती है। जैसे आप इसमें डेट नाम का एक डेटा टाइप यूज कर सकते हो जो कि जेसन में अवेलेबल नहीं होता। इसमें एक और होता है रॉ डेटा करके डेटा टाइप, वो आप यूज कर सकते हो। इसमें टाइम स्टैम्प भी होता है, इसमें टाइम स्टैम्प भी होता है। ये तीन ऐसी नई चीज है जो जेसन में अवेलेबल नहीं होती। जेसन में मैंने बताया बाइनरी वैल्यूज, बूलियन वैल्यूज स्टोर कर सकते हो आप, उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, नंबर स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग्स स्टोर कर सकते हो, एरे स्टोर कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें आप बीसन में भी कर सकते हो, लेकिन बीसन में हमारे पास ये तीन नए डेटा टाइप्स और होते हैं। कौन कौन से, डेट, रॉ डेटा और टाइम स्टैम्प, ठीक है। लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा जेसन के ऊपर। अभी आप लोगों को जिसको डिफिकल्टी लग रही होगा, तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने जेसन की स्ट्रिंग, जेसन की जो मैं क्वेरी लिखूंगा वो मैं आपको रिलेट करके दिखाऊंगा नॉर्मल सीक्वल के साथ। तो आपको कंफ्यूजन जो होगा वो क्लियर हो जाएगा कि अच्छा सीक्वल में इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो हम इसको जेसन में कैसे इंटरप्रेट करेंगे, या मोंगो डीबी में इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा मॉडल्स। तो यहां तक हमने पढ़ लिया रिलेशनल और नॉन रिलेशनल में क्या डिफरेंस होता है।
नॉन रिलेशनल के अंदर हमारा मेन फोकस है, हमें मोंगो डीबी स्टडी करना है। तो मोंगो डीबी स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा मॉडल पढ़ना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा मॉडल में जो भी क्वेरी हमें करनी है वो हमें करनी है जेसन फॉर्मेट में। तो ये इसलिए सब इंटर रिलेटेड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अब सारे लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जो डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा मॉडल है वो क्या होता है, सिंपल सा एक तरीका है। सपोज ये बहुत बड़ा डेटाबेस है, इससे बहुत बड़ा डेटाबेस है ये मैंने ऐसे बना लिया, एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, ठीक है। अब देखो इस डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं, यही तो होता है। एक आपने रूम बनाया और उस रूम के अंदर आपने बहुत सारा डेटा स्टोर कर दिया। अब मैं डेटा कैसे स्टोर कराऊंगा रिलेशनल डेटाबेस में, कि एक बड़े डेटाबेस में ये पहली टेबल है, दिस इज टेबल नंबर T1, ये मेरी एक टेबल है T2, ठीक है, और एक ये मेरी टेबल है T3। ऐसी यहाँ मेरे पास n नंबर टेबल हो सकती हैं इस पूरे डेटाबेस में। इसको मैं बोल रहा हूँ रिलेशनल, इसको मैं बोल रहा हूँ रिलेशनल डेटाबेस। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं डेटा स्टोर करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर विच इज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, ये रिलेशनल है। अब थोड़ा सा आपको अब अपनी मेमोरी को शार्प करके टर्मिनोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। कैसे, देखो जो रिलेशनल डेटा मॉडल में मैं करता हूं, करना मुझे डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा मॉडल में भी वही है, लेकिन अब मैं उसको थोड़ा चेंज करके कर रहा हूं। कैसे, कि जितनी भी टेबल्स हैं इन टेबल्स को हम मोंगोडीबी के अंदर बोलते हैं कलेक्शंस। बच्चों क्या बोलते हैं, कलेक्शंस। अगर मैं या अगर कोई भी आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कलेक्शंस आर देयर इन दिस मोंगोडीबी डेटाबेस, तो वो आपसे टेबल्स ही पूछ रहा है। लेकिन मोंगोडीबी में या डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा मॉडल में जितने भी कलेक्शंस होते हैं उनको सबको हम टेबल के इक्विवेलेंट काउंट करते हैं। ये यहां तक समझ में आ गया, से यस नो। तो अगर मैं बोलूं कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस में कितने अभी हमारे पास कलेक्शंस होंगे, तो आपका आंसर होगा 3, कि सर हमारे पास 3 कलेक्शंस होंगे, ठीक है। तो यही लिखा है, डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा मॉडल्स स्टोर्ड रिकॉर्ड्स एज डॉक्यूमेंट्स विच आर गैदर टुगेदर इन कलेक्शंस, ठीक है। अब एक हम नई चीज और पढ़ेंगे। नई चीज क्या, मैं इसको कर देता हूं पिंक। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, कि कलेक्शंस तो हमने देख लिया कि एक डेटाबेस के अंदर हमारे पास बहुत सारे कलेक्शंस हो सकते हैं। अब इन कलेक्शंस में, कलेक्शन क्या क्या बोल रहा हूं मैं, कलेक्शंस है मेरे सिंपल टेबल। अब इन टेबल के अंदर जो रोज होती हैं, टेबल के अंदर जो रोज होती हैं, आप उनको टपल्स बोलते हो या आप उनको रिकॉर्ड्स बोलते हो। तो बेटा ये सारे के सारे जो होते हैं दे विल बी नोन एज माय डॉक्यूमेंट्स, इसीलिए मैं डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा मॉडल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको मोंगोडीबी के अंदर टपल्स और टेबल्स की टर्म्स में बात नहीं करनी है, आपको कलेक्शंस और डॉक्यूमेंट की फॉर्म में बात करनी है, ठीक है। तो कलेक्शन क्या हो गया, इक्विवेलेंट टू टेबल, और उस कलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब बता रहे होंगे कितने नंबर ऑफ रोज हैं। तो ये जो T1 नाम का कलेक्शन है इसमें 3 डॉक्यूमेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं। जो T2 नाम का कलेक्शन है इसमें मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि कितनी रोज है मेरे पास, 3 रोज हैं। और जो T3 नाम का कलेक्शन है इसमें भी मेरे पास कितनी रोज हैं, 2। तो मेरे पास पहला डॉक्यूमेंट ये हो गया और दूसरा डॉक्यूमेंट ये हो गया। तो यही चीज ऊपर बताई गई है, क्या, डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा मॉडल्स स्टोर्ड डेटा रिकॉर्ड्स विच आर एनालॉगस टू टपल्स एज डॉक्यूमेंट्स which are gathered together in collections and collection is analogous to tables। अब यहां तक समझ में आ गया कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स होती हैं, तो मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर भी बहुत सारे कलेक्शंस होंगे और उन कलेक्शंस के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। अब ये जो इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर मुझे अपना इनपुट देना है। अब इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या करते थे हम लोग, वैल्यू भरते थे ना, कि फला नाम ये होगा, उसके मार्क्स इतने होंगे, डिपार्टमेंट ये होगा। ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट के अंदर जो जाएगा वो किस फॉर्म में जाएगा, बीसन डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, बीसन डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, बीसन पढ़ेंगे। अब हम क्या लिखें, हम लिखेंगे उसको जेसोन की फॉर्म में, लिखेंगे हम उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन की फॉर्म में, लेकिन कंप्यूटर उसको कैसे इंटरप्रेट करेगा, बीसन डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। तो हमें बीसन से कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न जेसन से। और जेसन में हम कैसे लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ नेम वैल्यू पेयर। अब एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे कलेक्शंस हो सकते हैं। अब एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं, तो एक कलेक्शन के एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे कलेक्शंस हो सकते हैं और उन कलेक्शंस के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। यही होता है ना, एक टेबल, एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल और एक टेबल के अंदर बहुत सारी रोज हो सकती हैं। तो अब मैं क्या उसको बोल रहा हूँ, एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे कलेक्शंस हो सकते हैं और उन इंडिविजुअल कलेक्शंस के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जेसन यूज करेंगे, ठीक है। ये एक ब्रिज बन गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ये एक स्टूडेंट नाम का टेबल है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशनल डेटाबेस को।
अब अगर मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो कैसे बनेगी, सब लोग ध्यान से देखना यहाँ पर। देखो अब ये जो स्टूडेंट है ये रिलेशनल डेटाबेस में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेबल, और यही स्टूडेंट मोंगोडीबी डेटाबेस में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कलेक्शन, क्योंकि आइडियोलॉजी चेंज हो गई। अब इस कलेक्शन के अंदर सॉरी इस टेबल के अंदर कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। कितनी रोज हैं, 3 रोज। पहली रो ये हो गई, दूसरी रो ये हो गई, और तीसरी रो ये हो गई। अब देखो तो कितना हुआ यहाँ पर कितने इस स्टूडेंट नाम की टेबल में कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। एक है ये वाली रो, एक है ये वाली रो, और एक है ये वाली रो। ठीक है, अगर अब मुझे इसका मोंगोडीबी क्रिएट करना है तो पिक्टोरियली मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। तो ये मेरे पास एक डेटाबेस है कुछ बड़ा सा। इस डेटाबेस के अंदर मेरे पास 3 टेबल हैं। कितनी टेबल है, 3। पहली टेबल है मेरी स्टूडेंट नाम की, दूसरी टेबल है कलेक्शन 2, और तीसरी टेबल है कलेक्शन 3। ठीक है, क्योंकि ये मोंगोडीबी है तो मैं अब टेबल वर्ड इरेज करके क्या बोल रहा हूं, मेरे पास पहला कलेक्शन स्टूडेंट नाम का, दूसरा कलेक्शन है कलेक्शन 2 नाम से, और तीसरा कलेक्शन है कलेक्शन 3 नाम से। ठीक है, ओके जी। अब देखो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट नाम के कलेक्शन के अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट है 102 एलिस 35, दूसरा डॉक्यूमेंट है 105 जेन 37, एंड थर्ड डॉक्यूमेंट इज 106 जॉन 42। तो कलेक्शन 1 स्टूडेंट, इसके अंदर कितने डॉक्यूमेंट है, 3 डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 और डॉक्यूमेंट 3। अब जो ये डॉक्यूमेंट 1 है ये किसको सपोर्ट करेगा, जेसन फॉर्मेट को। और जेसन फॉर्मेट लिखने के लिए आपको मैंने क्या बताया है कि हमें जेसन फॉर्मेट लिखना है एनक्लोज्ड इन curly braces followed by name value pair, followed by name value pair। अब नेम वैल्यू पेयर क्या बोल रहा है यहां पर, नेम क्या है यहां पर, देखो यहां पर नेम क्या है, कि ये वाला एट्रीब्यूट का नाम, इसको मैंने किससे मैप कर दिया, एलिस के साथ। और मार्क्स मेरा अलग कॉलम है, ये भी मेरा क्या होगा, की तरह काम करेगा, इसको मैंने मैप कर दिया 35 के साथ। सिमिलरली सेकंड कॉलम पे आ जाओ, सेकंड डॉक्यूमेंट पे। सेकंड डॉक्यूमेंट में क्या है, नेम को मैप कर दिया जेन के साथ, मार्क्स को मैप कर दिया 37 के साथ, नेम को मैप कर दिया जॉन के साथ डॉक्यूमेंट 3 में, और मार्क्स को मैप कर दिया 42 के साथ। तो दैट मींस अल्टीमेटली गोल क्या हुआ, मोंगोडीबी के अंदर जितने भी कलेक्शंस होंगे, उनके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें क्या करना है, जेसन फॉर्मेट रखना है। तो ये जो पर्टिकुलर एक डेटाबेस बन गया, इस डेटाबेस के अंदर हमने क्या करा, जेसन फॉर्मेट को सपोर्ट कर दिया। अब इसमें एक नई चीज आती है प्राइमरी की। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, प्राइमरी की। अब देखो, अब आप हमेशा याद रखो मोंगो डीबी के अंदर, मैं क्या बोल रहा हूं, मोंगो डीबी के अंदर जब भी आपको प्राइमरी की लिखनी है तो प्राइमरी की लिखने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा अंडरस्कोर आईडी फॉलोड बाय कोलन मार्क्स। यहां पर डबल कोट्स नहीं आएगा। ठीक है, डबल कोट्स नहीं आएगा। तो जहां भी आपको अंडरस्कोर आईडी मिले, इसका मतलब वो उस डॉक्यूमेंट की प्राइमरी की है, वो उस डॉक्यूमेंट की प्राइमरी की है। अब हम एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया अंडरस्कोर आईडी का क्या रोल है। यहां पर अंडरस्कोर आईडी इज अ प्री डिफाइंड field which always defines primary key for a particular document। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप MongoDB के अंदर लिखोगे, हर एक डॉक्यूमेंट की प्राइमरी की होगी। दैट मीन्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट इज एसोसिएटेड विद अ प्राइमरी की। तो अब एक इसमें नया पॉइंट हम ऐड करते हैं। देखो अब सपोज यहां पर तो अंडरस्कोर आईडी 102 लिख के दिया हुआ है, तो ये मेरी बन गई प्राइमरी की। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में प्राइमरी की नहीं लिखते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट में आप अंडरस्कोर आईडी नहीं रखते हैं, तो क्या होगा, एक जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही होगी तो एक ऑब्जेक्ट आईडी नाम का फंक्शन कॉल होगा उस डॉक्यूमेंट के लिए। क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट आईडी नाम का, बैकएंड पे ऑब्जेक्ट आईडी नाम का एक फंक्शन कॉल होगा, और वो क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट को अगर इसमें अंडरस्कोर आईडी नहीं है, आपने एक्सप्लिसिटली लिखी है, तो वो क्या करेगा, एक अंडरस्कोर आईडी खुद से क्रिएट कर देगा और एक 12 बाइट का हेक्साडेसिमल प्राइमरी की इसको असाइन कर देगा। ठीक है, दोबारा से सुनो मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देखो 2 तरीके होते हैं प्राइमरी की बनाने के, या तो आपने प्राइमरी की एक्सप्लिसिटली अंडरस्कोर आईडी लगा दी, तो अगर आपने अंडरस्कोर आईडी लगा के लिख दिया प्राइमरी की 102, तो क्या करेगा डॉक्यूमेंट, क्या करेगा जब कंपाइलर इसको रीड करेगा तो उसके लिए आईडी अंडरस्कोर आईडी लिखा उसके आगे 10, तो ये उसकी प्राइमरी की बन जाएगी, ये उसकी प्राइमरी की बन जाएगी। लेट्स सपोज यहां होता डॉक्यूमेंट 1 और ये फील्ड ही ना होता, ये डॉक्यूमेंट 1 और ये फील्ड ही ना होता, तब भी
आप ये मत सोचो कि इसकी प्राइमरी की नहीं बन रही, इसकी प्राइमरी की तब भी बन रही है, लेकिन इसकी प्राइमरी की तब कौन बना के देगा? कंपाइलर बना के देगा। सीक्वल का कंपाइलर बना के, नो सीक्वल का कंपाइलर बना के देगा इसकी प्राइमरी की। वो कैसे बनेगी? वो ऐसे मिलती है कि जब कंपाइलर इस डॉक्यूमेंट को चेक कर रहा होगा, कंपाइलर इस डॉक्यूमेंट को चेक कर रहा होगा, वो देखेगा अच्छा नेम नाम का फील्ड है, मार्क्स नाम का फील्ड है, और इसमें अंडरस्कोर आईडी नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसी टाइम, रन टाइम पे एक ऑब्जेक्ट आईडी फंक्शन को कॉल कर देगा। फंक्शन आईडी जो ऑब्जेक्ट आईडी फंक्शन से कॉल हुई, वो क्या करेगी? अंडरस्कोर आईडी रिटर्न करेगी। अब वो अंडरस्कोर आईडी जो रिटर्न करेगी वो एक 12 बाइट का हेक्साडेसिमल नंबर होगा, जो इस डॉक्यूमेंट वन की क्या बन जाएगी? प्राइमरी की बन जाएगी। तो आप खुद से प्राइमरी की लिखना चाहते हैं तो आपके पास अंडरस्कोर आईडी का ऑप्शन है। और लेट्स सपोज आपने किसी डॉक्यूमेंट की प्राइमरी की खुद से अंडरस्कोर आईडी नहीं दी, तब भी उस केस में उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को 12 बाइट का हेक्साडेसिमल नंबर मिल जाएगा, विच विल बी ट्रीटेड एज इट्स प्राइमरी key. I hope it is clear. So in NoSQL, every particular document is always associated with a primary key. तो जैसे ही आप कोई और डॉक्यूमेंट इसमें ऐड करोगे और वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी प्राइमरी की के साथ एडेड है, तो वहां वो क्या कर देगा? एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, तो डुप्लीकेसी कभी नहीं आएगी। समझ में आ गया ये चीज? देर इज नो डुप्लीकेसी इन माई नो सीक्वल डॉक्यूमेंट्स। आई होप अप टू हियर एवरीथिंग इज क्लियर। क्योंकि प्राइमरी की आप दे रहे हो नहीं दे रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो खुद से बना के दे रहा है। अगर आपने सेम डॉक्यूमेंट दोबारा से पेस्ट किया जो प्राइमरी की के साथ एसोसिएटेड है, तो वो दूसरी बार में उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। यहां तक समझ आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये मेरा एक, इसको मैंने इसमें वो लगाया हुआ है, ये मेरा एक पहला है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा ये डॉक्यूमेंट हो गया। सेकंड रो जो होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा डॉक्यूमेंट होगा, और जो थर्ड रो होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट 3 होगा। तो जितने भी आपके टेबल के अंदर रोज होंगे उतने ही MongoDB के अंदर क्या होंगे? डॉक्यूमेंट्स होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम MongoDB का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले लेआउट समझ लेते हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि अब यहां पर आपको मेंशन कर रहा हूं मैं कैसे MongoDB क्रिएट करना है, कैसे मेथड्स यूज करने हैं, सब कुछ कैसे करना है। ठीक है, सो द लेआउट ऑफ MongoDB डेटाबेस एंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स कुछ इस टाइप से है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो, ये एक नो सीक्वल डेटाबेस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर मेरे पास क्या है? एक पहला कलेक्शन ये है, दूसरा कलेक्शन ये है, तीसरा कलेक्शन ये है, कलेक्शन 4 और कलेक्शन 5। ठीक है, अब इस डेटाबेस 1 में से किसी भी कलेक्शन में से अगर आपको कुछ भी कॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ मेथड्स कॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ आप फंक्शनैलिटी लगाओगे तभी आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। तो वो कैसे करना है? लेट्स सी वन बाय वन। ठीक है, देखो, कॉलिंग डेटाबेस मेथड। अब जब जितने भी, अब देखो, एक ये डेटाबेस है, तो डेटाबेस अगर एक बार लोड हो गया, डेटाबेस अगर एक बार आपने मेमोरी में लोड कर दिया, तो मेमोरी में लोड करने के बाद आपको कुछ मेथड्स कॉल करने पड़ेंगे। अब वो मेथड कैसे कॉल करने हैं? लेट्स सी वन बाय वन। ठीक है, तो हम लोग आपके साथ एक लिंक शेयर करेंगे जहां पर सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग, सपोज जैसे मेरे पास 2 मेथड्स हैं। एक तो मेथड है मेरे पास गेट कलेक्शन। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको मेंशन कर देता हूं, सब लोग ध्यान से सुनो, कि जैसे सीक्वल में आप फॉलो करते आ रहे थे ना, कि सीक्वल में आप वो केस सेंसिटिव नहीं है बिल्कुल भी, आप स्मॉल लिख दो कैपिटल लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। MongoDB के अंदर केस सेंसिटिव है, MongoDB इज केस सेंसिटिव। तो देखो यहाँ मैंने जो गेट कलेक्शन नाम का मेथड लिखा है, गेट कलेक्शन, तो ये कैमल केस है। ठीक है, ये कैमल केस है, दैट मीन्स आपको जी स्मॉल बनाना है और सी कैपिटल बनाना है। तो जहां पर भी आप खुद से कोडिंग कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखना कि कैमल केस फॉलो करता है। तो जैसे एक गेट कलेक्शन मेथड हो गया, या गेट कैपिटल सी, गेट कलेक्शन इन्फोज, गेट कलेक्शन इन्फो, कुछ इस टाइप के मेथड हैं जो डेटाबेस को कॉल करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। देखो, इंपॉर्टेंटली एक नई चीज यहां पर अब मैं बताने वाला हूं, डीबी। डीबी क्या है? एक प्लेस होल्डर होता है, जो भी काम करेगा यहां डीबी करेगा। डीबी इज एक्टिंग लाइक अ प्लेस होल्डर। डीबी इज एक्टिंग लाइक अ प्लेस होल्डर। ओके, व्हाट इज दिस प्लेस होल्डर? जब आपने एक बार डेटाबेस स्टोर कर दिया, मेमोरी के अंदर आपने डेटाबेस लोड कर दिया, तो जो मेमोरी के अंदर डेटाबेस लोड हो गया, वो डीबी क्या करेगा? उसको रेफर करेगा। क्या करेगा? उसको रेफर करेगा।
ठीक है। अब जब एक बार मेमोरी में डेटाबेस लोड हो गया, उसको रेफर हम किससे करेंगे? प्लेस होल्डर से। प्लेस होल्डर में उसको लेके आएंगे, और जैसे ही प्लेस होल्डर में आएगा तो प्लेस होल्डर से हम मेथड्स को क्या करने लगेंगे? कॉल करने लगेंगे। तो अल्टीमेटली गोल क्या है कि पहले हमें क्या करना है? अपने डेटाबेस को लोड करना है। लोड करने के बाद उसको प्लेस होल्डर से लिंक करना है, और जब एक बार प्लेस होल्डर से वो लिंक हो जाएगा तो उस डेटाबेस के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे वो सारे के सारे आप यूज कर सकते हो, सारे के सारे यूज कर सकते हो। तो अगर आपने लोड नहीं किया तो फिर आप यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम तो यही है कि हमें कैसे उसको लोड करना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन इसको देख लेते हैं। अच्छा, पहले इसको मैं लोड वाले को बता देता हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो यूज कमांड है, देखो, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला? मेथड को, कलेक्शंस को बता दिया हमने, हमने डॉक्यूमेंट्स बता दिए, ये सारी चीजें हमने क्लैरिटी ले ली। अब हमारा मकसद है कि डेटाबेस को लोड कैसे करना है। जब भी आपको डेटाबेस लोड करना है तो आपके पास एक कीवर्ड होगा यूज, या आप इसको बोल दो कमांड, यूज कमांड। ठीक है, तो जो भी डेटाबेस हमें लोड करना है वो होगा विद द हेल्प ऑफ यूज, विद द हेल्प ऑफ यूज। अब इसमें एक चीज और है, अगर आपके पास कोई डेटाबेस है, सपोज मेरा नाम है अभिषेक, मुझे अभी नाम का एक डेटाबेस बनाना है, तो अगर अभी नाम का डेटाबेस ऑलरेडी अवेलेबल है तो यूज क्या करेगा? उसको डायरेक्टली लोड कर देगा। यूज क्या करेगा? उसको डायरेक्टली लोड कर देगा। और अगर अभी नाम का कोई डेटाबेस नहीं है अवेलेबल तो यूज कमांड क्या करेगा? उसको उसी टाइम पर क्रिएट भी कर देगा और लोड भी कर देगा। तो ये दोनों फंक्शनैलिटी करता है यूज कमांड। हमें कोई क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यू में कि व्हाट आर द फंक्शनैलिटी ऑफ यूज कमांड। सो यूज कमांड इज बेसिकली यूज टू लोड डेटाबेस, बट साइड बाय साइड इफ द डेटाबेस इज नॉट अवेलेबल तो हम क्या करेंगे? उसी टाइम उसको क्रिएट भी कर देंगे और उसी टाइम उसको लोड भी कर देंगे। तो यूज कमांड कैन ऑल्सो डू दिस काइंड ऑफ टास्क एज वेल। ठीक है, तो जो प्रीडिफाइंड डेटाबेस होगा, जैसे प्रीडिफाइंड डेटाबेस कुछ माई डीबी पड़ा हुआ है ऑलरेडी सीक्वल में, तो आप उसको यूज से लोड कर लो। और आपको लगता है कि नहीं मुझे खुद से अपना डेटाबेस बनाना है, तो आप क्या करोगे? अपने नाम से कोई डेटाबेस अगर बनाओगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूज कमांड लगानी पड़ेगी। क्या लिखोगे? यूज अभी। और लोड करने के लिए फिर अलग से कुछ नहीं करना, वो उसी टाइम लोड भी हो जाएगा और उसी टाइम क्रिएट भी हो जाएगा। तो यूज कमांड इज बेसिकली टू लोड द डेटाबेस एंड ऑल्सो टू क्रिएट द डेटाबेस। यहां तक समझ? ओके, नाउ थर्ड इज कॉलिंग कलेक्शन मेथड। कॉलिंग कलेक्शन मेथड, अब आपको समझ में आ रहा है ये डीबी क्या है? व्हाट इज दिस डीबी? इट्स अ काइंड ऑफ प्लेस होल्डर। इट्स अ काइंड ऑफ प्लेस होल्डर। क्यों? क्योंकि इसकी मैपिंग किससे हुई होगी? उस डेटाबेस से जो आपने स्टोर बनाया हुआ है, और इस डेटाबेस के अंदर जितने भी मेथड्स बनाए हैं उनको कॉल करने के लिए आपको प्लेस होल्डर से यूज करना पड़ेगा। सो डीबी डॉट कलेक्शन नेम डॉट कलेक्शन मेथड नेम, दिस इज द जनरल सिंटेक्स ऑफ दिस कॉलिंग कलेक्शन मेथड। ओके, अब ये थोड़ा क्लमजी सा हो गया, अब इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली करना क्या है। ठीक है, तो अब सारे लोग ध्यान से देखना, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्रिएशन एंड इंसर्शन, राइट? सो लेट्स सी, देखो अब ध्यान से। सीक्वल में आप क्या करते थे? सीक्वल में क्रिएट करना है डेटाबेस तो ऐसे करते थे ना, क्रिएट, कीवर्ड था डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ कॉलेज डीबी। उसी के इक्विवेलेंट अगर आपको मोंगो डीबी में डेटाबेस बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? यूज एंड द नेम ऑफ द डेटाबेस इज कॉलेज डीबी। ये कॉलेज डीबी के नाम का जो डेटाबेस है मैं थ्रू आउट स्लाइड्स में यही यूज करता चला जाऊंगा। ठीक है, समझ आ गया? हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन मोंगो डीबी? सिंपल टर्म इज देयर, यूज, एंड दिस इज यूज ऑल थ्री इन स्मॉल केस लेटर्स। यूज, मैंने क्या नाम दिया यहां पर? कॉलेज डीबी। अब देखो, ये डीबी नाम का जो डेटाबेस है ये ऑलरेडी सीक्वल के, नो सीक्वल के डेटाबेस में तो पड़ा नहीं होगा, तो मुझे तो खुद अपना बनाना है ना। तो मैंने ये खुद बनाया, पहले मैंने इसको बनाया, बनाने के बाद क्या किया? लोड करने की जिम्मेदारी आई। तो मुझे दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं यूज कमांड से सेटिस्फाइड हूं। यूज कमांड क्या कर रहा है? इसको बना भी रहा है और इसको लोड भी कर रहा है। सो अगर आप सीक्वल में किसी भी डेटाबेस को बनाएंगे तो आप क्या कमांड लगाएंगे? क्रिएट डेटाबेस कॉलेज डीबी, और उसके इक्विवेलेंट मोंगो डीबी में क्या लिखा जाएगा? यूज कॉलेज डीबी। ओके, चलो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जहां पर ये ऊपर वाला दिखा रहा है मेरा एक कलेक्शन, और ग्रीन से मैंने हाईलाइट कर दी टेबल। ठीक है, तो अब मैं इसमें कुछ आगे बढ़ाऊंगा इसलिए मैंने ये ऐसे लगाया। तो ये ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला है मेरा एक कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? टेबल। और नीचे क्या है? ये जो ग्रीन लाइन से मैं शो कर रहा हूं ये भी मेरा कॉलेज डीबी है, लेकिन ये डीबी है, तो ये रिलेशनल डेटा मॉडल हो गया। क्या हो गया? ये रिलेशनल डेटा मॉडल। और इसमें मैं पुट कर रहा हूं नॉन रिलेशनल मॉडल, नॉन रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, नॉन रिलेशनल डेटा मॉडल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब
सब कुछ हमने कर लिया। हमने क्या किया, हमने कॉलेज डीबी नाम का डेटाबेस बना लिया। ठीक है, कॉलेज डीबी नाम का डेटाबेस बना लिया। तो यहां इसको ऐसे लिख लो, कॉलेज डीबी नाम का डेटाबेस बना लिया। अब इसके अंदर मुझे क्या बनाना है, टेबल्स बनानी है ना, टेबल्स ही बनानी है। और टेबल्स बनाने के लिए क्या करना पड़ता था सीक्वल में, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कुछ ऐसे करते थे हम। वहां यहां से मुझे ये सब नहीं करना। यहाँ क्या करना है, टेबल्स किसकी इक्विवेलेंट होती है, कलेक्शन की। तो हमारे पास एक प्री डिफाइंड मेथड है, क्रिएट कलेक्शन। क्या है, क्रिएट कलेक्शन। तो हमारे पास एक नया सिंटेक्स आ गया, टेबल को क्रिएट कर रहा हूं मैं। किसको क्रिएट कर रहा हूं, टेबल को। लेकिन टेबल को मैं क्रिएट किससे कर रहा हूं, क्रिएट कलेक्शन नाम के मेथड से। क्योंकि मोंगोडीबी में जितने भी कलेक्शंस बनेंगे या जितनी भी टेबल्स बनेंगी वो सब बनेंगी क्रिएट कलेक्शन मेथड को कॉल करके। सो डीबी डॉट कैमल केस है तो क्रिएट कलेक्शन। ठीक है, क्रिएट कलेक्शन। अब उस टेबल का क्या नाम होगा या उस कलेक्शन का क्या नाम होगा, आप दोगे नेम के अंदर। और एक यहाँ ऑप्शंस लिखा हुआ है, ऑप्शंस स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये ऑप्शनल होता है। आप लगाओ ठीक है, नहीं लगाओ तब भी ठीक है। तो इस ऑप्शंस के अंदर हम क्या क्या फिल कर सकते हैं, हम ये फिल कर सकते हैं कि जो हमने कॉलेज डीबी नाम का डेटाबेस बनाया है, इस पूरे डेटाबेस के अंदर कितने कलेक्शंस रखने हैं, तो वो आप लिमिट ऑप्शंस में सेट कर सकते हो। ठीक है, या किसी पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं वो आप किस में कर सकते हो, इस ऑप्शंस में पुट कर सकते हो। तो ऑप्शन हमेशा ऑप्शनल होता है, तो आप इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मत देना, सिर्फ इंपॉर्टेंस अभी नेम को दो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि अगर मुझे मोंगोडीबी के अंदर कोई भी कलेक्शन क्रिएट करना है वो कैसे करना है, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन से फॉलोड बाय नेम। तो यहां पर मैं क्या नेम दूंगा, मैं नेम दे रहा हूं कॉलेज डीबी, सॉरी कॉलेज डीबी कह रहा हूं मैं, कोई नेम दे देता हूं, सपोज T1। आई एम गोइंग टू गिव इट एज T1। यहां तक समझ में आ गया। क्रिएट कलेक्शन इज द इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ माई मोंगोडीबी बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग माई कलेक्शंस इन माई डेटाबेस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहां आ गया अब ये मेरा, देखो अब। सो सीक्वल के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मुझे दो टेबल बनानी है तो मैं क्या लिखूंगा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, और दूसरी मैंने क्या लिखी, क्रिएट टेबल कोर्सेज। दो टेबल बनेंगे, कि स्टूडेंट नाम की टेबल बन गई और दूसरी बन गई कोर्स नाम की टेबल। दिस इज माय स्टूडेंट्स टेबल एंड दिस इज माय कोर्स टेबल। ठीक है, अब सेम चीज अगर मुझे मोंगोडीबी में करनी है तो मैंने आपको क्या बताया, टेबल को क्रिएट करने के लिए क्या होगा, क्रिएट कलेक्शन। डीबी आपको पता है, डीबी के अंदर आपका क्या स्टोर हुआ होगा, सबसे पहले यूज कमांड ने कॉलेज डीबी नाम का एक डेटाबेस स्टोर किया होगा, बनाया होगा, लोड किया होगा, उसको हमने किससे रेफर किया हुआ है, डीबी से। डीबी एक प्लेस होल्डर है और इस प्लेस होल्डर में हम क्या करेंगे, क्रिएट कलेक्शन नाम के मेथड से एक पहली कलेक्शन बनाएंगे और उस कलेक्शन का क्या नाम दिया गया, स्टूडेंट। क्या नाम दिया गया, स्टूडेंट। दूसरा कलेक्शन बनाया, उसका क्या नाम दिया, कोर्सेज। सो बेसिकली देयर आर टू कलेक्शन, फर्स्ट कलेक्शन इज स्टूडेंट, सेकंड कलेक्शन इज कोर्स। अप टू हियर एनी कंफ्यूजन, इसीलिए रिलेट करके ज्यादा समझ में आ रहा होगा कि अच्छा सीक्वल में ऐसा है तो उसका रेप्लिका मोंगोडीबी में ये होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां आ गए, अब हम देखो तो क्या हुआ, ये यहां तक हमने सब पढ़ लिया था पिछली स्लाइड में। तो हमने इसको बना लिया कॉलेज डीबी, कॉलेज डेटाबेस के अंदर दो टेबल बनी, एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनी है, एक कोर्स नाम की टेबल बनी। सिमिलरली एक हमने क्या करा, कॉलेज डीबी मोंगो डीबी एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस बनाया जिसमें दो कलेक्शन बने, पहला कलेक्शन बना स्टूडेंट नाम का और दूसरा कलेक्शन बना कोर्स नाम का। काम तो सेम ही हो रहा है, काम तो सेम ही हो रहा है, बट अब हम क्या कर रहे हैं, बस हमारा रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग हो गया, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग हो गया। ठीक है अब देखो यहां पे मोंगोडीबी सीक्वल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारा कलेक्शन तैयार हो गया, यहां तक हमने क्या किया, कलेक्शन बना लिया। अब इस कलेक्शन के अंदर हमें क्या करना है, रोज फिलअप करनी है। कलेक्शन के अंदर क्या करनी है, रोज फिलअप करनी है। रोज नहीं बोल रहा, रोज किसके लिए है, टेबल के लिए। कलेक्शन के अंदर हमें क्या फिलअप करने हैं, डॉक्यूमेंट्स। क्या फिलअप करने हैं, डॉक्यूमेंट्स। तो सिमिलरली इस कॉलेज डीबी डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट्स नाम की जो टेबल है इसके अंदर मुझे क्या फिल करने हैं, नंबर ऑफ रोज। तो यहां तो मुझे नंबर ऑफ रोज फिल करने हैं और यहां क्या फिल करने हैं, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब वो कैसे फिल करेंगे, लेट्स सी। उसके लिए मेरे पास तीन मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक मेथड होता है इंसर्ट, दूसरा मेथड होता है इंसर्ट वन और तीसरा मेथड होता है इंसर्ट मैनी। ठीक है, वन मेथड इज इंसर्ट, अनदर मेथड इज इंसर्ट वन एंड थर्ड मेथड इज इंसर्ट मैनी। तो इनका जैसे नाम लिखा हुआ है उसी से आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा कि अगर आप इंसर्ट वन मेथड एक्सप्लिसिटली यूज करते हो तो सिर्फ आप एक ही डॉक्यूमेंट
इंसर्ट कर पाओगे, मतलब आप एक सिंगल रो इंसर्ट कर पाओगे। तो अगर आपके डेटाबेस में ऐसा है कि आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट वन मेथड यूज कर लो। अगर आपको एट ए टाइम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ इंसर्ट करने तो आप इंसर्ट मैनी यूज कर लो, ठीक है। या अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप एक भी स्टोर कराना चाहते हो और बहुत सारे भी स्टोर कराना चाहते हो तो आप सबसे पहले इंसर्ट यूज कर लो। तो आपके हाथ में है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया होगा, इंसर्ट वन बनाया होगा। जैसे जैसे मोंगोडीबी में अपडेशन होता चला गया उन्होंने इंसर्ट मैनी बना दिया होगा, इंसर्ट वन बना दिया होगा। तो अल्टीमेटली इंसर्ट एक ऐसा मेथड है जिसमें आप दोनों टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हो। इंसर्ट वन मेथड है आप इसमें सिंगल डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो, और इंसर्ट मैनी में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ स्टोर कर सकते हो। तो अप टू हियर आई गेस वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब इनको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो इंसर्टिंग अ सिंगल डॉक्यूमेंट विद इंसर्ट वन। तो अब देखो डीबी बनाया, ठीक है। किसमें इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट, कलेक्शन के अंदर। तो आप क्या करोगे, कलेक्शन का नाम दोगे। कलेक्शन का नाम क्या था, स्टूडेंट्स। क्या था कलेक्शन का नाम, स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट के अंदर आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। क्या करना है, इंसर्ट। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है या मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने हैं। तो मैं इंसर्ट मेथड यूज कर रहा हूं क्योंकि इंसर्ट मेथड यूज करके मैं दोनों टास्क परफॉर्म कर सकता हूं। तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ ये लिख दिया, और इसके बीच में आ जाएगा नेम की वैल्यू पेयर। अप टू हियर एनी कंफ्यूजन, ये सबसे पहले बताओ इंसर्ट मेथड समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां मैंने बताया कि जो भी डेटाबेस होगा में कलेक्शन अंदर आपको वो डॉक्यूमेंट स्टोर करना है। तो डेटाबेस का रेफरेंस पड़ा हुआ है, क्या ऐड करना है डॉक्यूमेंट। लेकिन डॉक्यूमेंट कहाँ ऐड करोगे, उसके लिए कलेक्शन भी तो पता होना चाहिए, किस टेबल में रो जाएगी। तो स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन में क्या जाएगा, डॉक्यूमेंट जाएगा। और कैसे जाएगा, एक है तो इंसर्ट लगा दो, बहुत सारे तो इंसर्ट मैनी लगा दो। इसके बीच में क्या आएगा, की वैल्यू पेयर, नेम वैल्यू पेयर। यहां पर आपकी जेसन वाली क्वेरी लिखी जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मेरा इंसर्ट मैनी। अच्छा, अब इंसर्ट मैनी अगर यूज करना है तो उसका सिंटेक्स ये होता है, डीबी डॉट क्या कलेक्शन का नाम लिया था हमने, स्टूडेंट, डीबी डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है। और इंसर्ट मैनी, कैमल के से ध्यान रखना, एम कैपिटल है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, इंसर्ट मैनी। अब देखो ये बहुत सारे स्टोर करेगा तो ये एरे की फॉर्म में करता है। तो करली ब्रेसेस से नहीं स्टार्ट करना, किससे स्टार्ट करना है, स्क्वायर ब्रैकेट से। और स्क्वायर ब्रैकेट पे ही क्या करना है, क्लोज करना है, ठीक है। बहुत सारे रखने हैं तो क्या करना है, स्टार्ट करना और स्क्वायर ब्रैकेट पे ही क्लोज करना है। अब इनके बीच में आपको बहुत सारे ऑर्डिनरी स्ट्रिंग्स लिखनी है जेसन की। तो वो आप कैसे लिखोगे, इन द फॉर्म ऑफ ओपनिंग करली ब्रेस, क्लोजिंग करली ब्रेस। अगर बहुत सारी है तो कॉमा लगा के आप क्या कर सकते हो, उसको सेपरेट भी कर सकते हो। कॉमा लगा के क्या कर सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो, ठीक है। सो लाइक दिस वी हैव दिस इंसर्ट मैनी। और अगर आपको इंसर्ट मैनी नहीं चाहिए तो आपके पास इंसर्ट तो है ही। इंसर्ट क्या काम कर रहा है, इंसर्ट आपका दोनों टास्क परफॉर्म कर रहा है, एक भी इंसर्ट कर सकता है और बहुत सारे भी इंसर्ट कर सकता है। सो दिस इज माई insert method, how to insert documents in my MongoDB. Okay, let's come to the next slide now. अब देखो यहां पर रिलेट करते हैं, क्या से रिलेट करना है, देखो ध्यान से। एसक्यूएल में अगर मुझे इंसर्ट कमांड चलानी है तो सर ने आपको पढ़ाया होगा कैसे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। और वैल्यू क्या क्या है, एलिस 10235 CSC N3, यही बताया था ना सर ने। यहाँ मैं लिख देता हूं, अगर आपको सीक्वल की कमांड चलानी है और आपने कोई टेबल बना ली, उस टेबल के अंदर आपको वैल्यू भरनी है तो कैसे भरते हो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, क्या है टेबल का नाम, स्टूडेंट्स। और इसके अंदर हमें क्या भरनी है, वैल्यूज। कैसी वैल्यूज, टपल, कौन कौन सी एलिस, फाइन। दूसरा क्या लिखा है 102, थर्ड वन इज 35 एंड फोर्थ वन इज CSC एंड दिस इज 3 तो जो सीक्वल का काम इंसर्ट कमांड से हो रहा था वही मोंगो डीबी में क्या होगा, इंसर्ट वन और इंसर्ट से होगा। तो देखो यही करना ना मैंने, डीबी क्या है, प्लेस होल्डर जहां पर मेरा डेटाबेस स्टोर्ड है, उसके अंदर एक कलेक्शन है स्टूडेंट नाम का, और स्टूडेंट नाम के कलेक्शन में मुझे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है। क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट। अब जो डॉक्यूमेंट इंसर्ट होगा वो मैंने ऐसे ही बताया था ना, डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट वन, ठीक है। इसके अंदर आपको करली ब्रेस से स्टार्ट करना और करली ब्रेस पे ही क्या करना है, क्लोज करना है, ठीक है। करली ब्रेस पे ही स्टार्ट करना और करली ब्रेस पे ही क्लोज करना है। तो देखो क्या हुआ, ने मार्क्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया 35, ब्रांच के कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया CSC, और ईयर के, ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, तो ये इंसर्ट वन हो गया। अब देखो इंसर्ट मेथड यूज किया। अब इंसर्ट मेथड में मैंने क्या बताया था, एक भी यूज कर सकते हैं और बहुत सारे भी यूज कर सकते हैं। ये मेरा देखो बन के आ गया। कोई अश्वनी शुक्ला, आप एक बार ये देख लेना इस पे देखो। तो सीक्वल के कॉरेस्पॉन्डिंग जब ये कमांड चलेगी तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ठीक है। और सेम चीज अगर मुझे मोंगो डीबी में करनी है तो कुछ ऐसा बनेगा। तो देखो यही बना। अब यहां ध्यान से देखो, मैंने आईडी का कंसेप्ट तो आई गेस बता दिया था। अब देखो इंसर्ट वन में आपने क्या करा, पहला डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया। अब इस पहले डॉक्यूमेंट में आपने कहीं पर भी अंडरस्कोर आईडी नहीं लिखा। लिखा नहीं ना कहीं भी अंडरस्कोर आईडी। तो अगर आपने अंडरस्कोर आईडी नहीं लिखा तो आप ये गलती मत करना कि जो स्टूडेंट आईडी होगी ये मेरी प्राइमरी की बन जाएगी। नहीं भैया, ये प्राइमरी की नहीं बनेगी। प्राइमरी की कब बनेगी, जब डॉक्यूमेंट के अंदर ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड लिखा होगा। अगर ये आपने अंडरस्कोर आईडी किसी भी डॉक्यूमेंट में लिख के नहीं दिया तो क्या करेगा, रन टाइम पे जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट आईडी नाम का एक फंक्शन कॉल करेगा, इसको 12 बाइट की एक हेक्साडेसिमल प्राइमरी के रिटर्न कर देगा। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अंडरस्कोर आईडी कोलन मार्क्स और ये 0x1446। तो इसका मतलब है कहने का मेरा कि ये 12 बाइट की मैंने क्या बनाई है, एक डमी प्राइमरी की बनाई है। ठीक है, तो 102 प्राइमरी की नहीं है, इसलिए मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी प्राइमरी की क्या बनेगी, 12 बाइट की हेक्साडेसिमल नंबर। तो जो कॉरस्पॉन्डिंगली इस स्टूडेंट नाम की टेबल में ये टपल जनरेट हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, कॉलेज डीबी के कलेक्शन स्टूडेंट नाम में ये डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है जिसकी प्राइमरी की ये। ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, सो ये हो गया। अब हम और क्या है इसमें, ठीक है, ये इंसर्ट मैनी मेथड हो गया। इंसर्ट मैनी आपको बता चुका। देखो अब अगर इसमें सिंगल होगा, देखो ये सिंगल होगा तो इंसर्ट मैनी काम नहीं करेगा। नहीं करेगा, हमारे पास मजबूरी है, क्योंकि दो टपल्स इंसर्ट करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इंसर्ट यूज करना पड़ेगा या इंसर्ट मैनी यूज करना पड़ेगा। इंसर्ट वन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो कितने हैं, जेन 105 37 IT4 जॉन 106 42 मैकेनिकल 3। कैसे होगा बताया था मैंने, डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट मैनी पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और स्क्वायर ब्रैकेट से ही क्लोज होगा। इसके बीच में आपको जितने भी लिखने हैं कैसे लिखोगे, इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पर कितने हैं, दो हैं। पहले में क्या आएगा, यहां से स्टार्ट हुआ पहला, नेम जेन, स्टूडेंट आईडी दिस, मार्क्स दिस, आईटी ईयर समथिंग, सेकंड वाला हो गया ये। अब देखो इन दोनों में समझ आ रहा है डिफरेंस। ये जो पहला वाला होगा आपका दिस वन, ये जो पहला डॉक्यूमेंट होगा, इसमें कहीं पर भी अपने अंडरस्कोर आईडी नहीं मेंशन करा है तो इसको तो बाय डिफॉल्ट 12 बाइट की मिलेगी। और जो सेकंड वाला डॉक्यूमेंट आपने बनाया उसमें लिखा है अंडरस्कोर आईडी 106, तो इस वाले डॉक्यूमेंट की जो प्राइमरी की होगी वो होगी 106, क्योंकि आपने एक्सप्लिसिटली अंडरस्कोर आईडी कितनी लिखी है, 106। तो ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसका एक रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं क्योंकि काफी सारा है और फिर हमें क्वेश्चंस भी करने हैं नेक्स्ट क्लास में। टपल्स बढ़ते चले जा रहे हैं टेबल के अंदर जैसे जैसे क्रिएशन बन रहा है, और कॉलेज डीबी के अंदर स्टूडेंट्स नाम के कलेक्शन में भी डॉक्यूमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट होती चली जा रही है। ठीक है, अब देखो पहली वाली को मिली 12 बाइट की हेक्साडेसिमल, क्योंकि हमने अंडरस्कोर आईडी नहीं लगाया था। दूसरी वाली को क्या मिली, 12 बाइट की हेक्साडेसिमल, क्योंकि हमने नहीं लगाया था। और तीसरी को मिली आईडी 106, क्योंकि हमने प्राइमरी की क्या लाई थी, अंडरस्कोर आईडी 106। अब आती है फैच। ठीक है, मतलब यहां तक हमने इंसर्ट कर लिया, टेबल बन गई, डेटाबेस बन गया, डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स बनानी थी वो बना ली, उन टेबल्स के अंदर हमने रोज भर दी। अब हम मोंगोडीबी की तरफ आए, हमने डेटाबेस बना लिया, उस डेटाबेस के अंदर हमें जितने कलेक्शंस बनाने थे हमने सारे कलेक्शंस बना लिए। उन कलेक्शंस के अंदर हमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स रखने के थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमने फिल कर लिए। तो अब आपका टेबल बन गया, डॉक्यूमेंट बन गया। अब आपको क्या करना है, उसमें से डेटा फैच करना है। सेलेक्ट कमांड यूज करते थे ना आप लोग फैचिंग के लिए, यही करते थे ना फैचिंग के लिए सीक्वल में सेलेक्ट कमांड। तो हम अब जो फैचिंग वाला काम हम सीक्वल में सेलेक्ट से कर रहे थे वो वाला फैचिंग वाला काम हम मोंगोडीबी में कैसे करते हैं, दिस इज अवर नेक्स्ट टास्क। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस फैच मेथड। ओके, अब हमें फैच कैसे करना है, तो फैच करने के लिए कुछ नहीं करना, फैचिंग डॉक्यूमेंट का एक सिंपल सा एक मेथड है जिसका नाम है फाइंड। क्या नाम है मेथड का नाम, फाइंड। ठीक है, तो इसका पहले सिंटेक्स देख लो, डीबी डॉट किस कलेक्शन से फाइंड करना है, स्टूडेंट से फाइंड करना है,
और फाइंड नाम का मेथड। आप ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं। अगर मैंने लिखा एम्प्टी करली ब्रेसेस क्या लिखा, मैं दोबारा लिख रहा हूं उसको, ध्यान से देखना। db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड पैरेंथेसिस ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस, ओपनिंग करली ब्रेस और क्लोजिंग करली ब्रेस। अगर आपने ये वाली कमांड लगाई db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड और ओपनिंग करली ब्रेस लगाया और क्लोजिंग करली ब्रेस लगाया और इनके बीच में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं लगाया, तो आपके कलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे के सारे फैच हो जाएंगे, सारे के सारे फैच हो जाएंगे। दैट मीन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वाला काम कौन कर रहा है, ये। ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंगली अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टपल चाहिए तो आप क्या करोगे, वहां वेयर क्लॉज लगाते थे, तो यहां पर भी आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स पुट करने पड़ेंगे, कुछ कंस्ट्रेंट्स पुट करने पड़ेंगे। तो यही इसका सिंटेक्स है, डीबी डॉट कलेक्शन नेम। देखो ध्यान से अब आगे देखो। आ, मेरे पास, हाँ देखो यहां पर पहली कमांड देखो, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। मैंने क्या लगाया, ओपनिंग करली ब्रेस क्लोजिंग करली ब्रेस, और यहां पर कुछ नहीं है। इसका मतलब होता है बेटा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सबको पता है ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अगर एक टेबल के अंदर 500 टपल हैं या एक कलेक्शन के अंदर 500 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो सारे के सारे फैच हो जाएंगे, सारे के सारे फैच हो जाएंगे। तो कितने फैच होंगे, तीन तीन टपल्स इस टेबल से और तीन डॉक्यूमेंट्स इस फाइंड नाम के स्टूडेंट्स नाम के कलेक्शन से। तो देखो 102 105 106, यहां पर क्या होगा, 102 वाला डॉक्यूमेंट आ गया, 105 वाला आ गया और 106 वाला आ गया। तो अल्टीमेटली अगर आपको फैचिंग करनी है तो फैचिंग आप करोगे फाइंड मेथड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको कुछ सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट उठाने हैं, सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट उठाने हैं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ ऑपरेटर्स बताने वाला हूं। ठीक है, क्या बताने वाला हूं, constraints can be applied over queries to picked selected documents. Constraints can be applied by making use of operators. तो हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको। सबसे पहला ऑपरेटर होता है मेरा EQ। ठीक है, सिंटेक्स का ध्यान रखना है क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। तो सिंटेक्स क्या है इसका, डॉलर साइन विद EQ। EQ क्या मतलब क्या होता है, इट इज वर्किंग एज अ इक्वल साइन, मैचेस वैल्यूज दैट आर इक्वल टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू। लिखना कैसे है, कुछ नहीं करना, फील्ड जिस भी फील्ड पे आपको लगाना है वो फील्ड दोगे, ऑपरेटर दोगे और वो वैल्यू दोगे। ठीक है, एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या एग्जांपल होगा इसका। देखो यहां देखो आप लोग सब, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स इज इक्वल टू 35, यही था ना, यही क्वेरी चलाओगे। अगर मुझे वो बच्चे निकालने हैं टेबल में से जिनके मार्क्स 35 के इक्विवेलेंट हो, तो सेम क्वेरी अगर आप मोंगो डीबी में चलाओगे तो कैसे लिखोगे, क्या करना है पता है, मैंने आपको बताया, डीबी नाम का प्लेस होल्डर लोगे जिसके अंदर लोड है डेटाबेस। उस डेटाबेस के अंदर क्या होगा, स्टूडेंट्स नाम का एक कलेक्शन पड़ा होगा, और उस स्टूडेंट नाम के कलेक्शन से आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मार्क्स फील्ड, यही तो होता है, यहां लिखा है ना फील्ड, क्या फाइंड आउट करना है, मार्क्स। और मार्क्स भी कौन से फाइंड आउट करने हैं, जो कि इक्वल होंगे किसके, 35 के। इसको यहां बंद करो, इसको यहां बंद कर दो और खत्म करो। समझ में आ गया। तो कंस्ट्रेंट्स के साथ अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट पिक करना है या आपको लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स उठाने हैं, तो अब आप एम्प्टी से नहीं जाओगे, आप किससे जाओगे, ऑपरेटर के थ्रू जाओगे। तो उसमें पहला ऑपरेटर है इक्वल, और इक्वल क्या करता है, मैचिंग करता है स्पेसिफाइड वैल्यू की। मतलब जो काम आप इसमें इक्वल से कर रहे थे वो काम अब आप यहाँ किससे करोगे, इससे करोगे। देखो और एक इसका एक और सिंटेक्स है, अगर आप चाहते हो कि ये ना लगाओ डॉलर साइन, मतलब डॉलर इक्वल टू ना लगाओ, तो उसका रिप्लेसमेंट ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर आपने लिखा db डॉट स्टूडेंट्स फाइंड मार्क्स 35, तो इसका मतलब भी यही होता है कि आप इक्वल मार्क्स फाइंड आउट करना चाहते हैं विच आर इक्वल टू 35। तो आप ये वाला वो सिंटेक्स भी यूज कर सकते हो जो मैंने यहाँ डबल टिक से यूज किया हुआ है, और आप ये वाला सिंटेक्स भी यूज कर सकते हो जिसको मैंने एरो से पुट किया हुआ है। इट्स अप टू यू। ठीक है, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता है। ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं और ऑपरेटर देखते हैं। अब आता है जीटी, डॉलर साइन जीटी, इसका मतलब है ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन। सिंटेक्स भी सेम है, वैसे ही चलेगा काम जैसे हमने पहले किया था। अब देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 35। तो अगर मुझे सीक्वल की ये वाली कमांड मोंगो डीबी में चलानी है तो मुझे कैसे चलानी पड़ेगी, ऐसे db डॉट स्टूडेंट फाइंड, किस फील्ड पे लगाना है, किस फील्ड पे लगाना है,
और क्या करना है, मार्क्स फाइंड आउट करने विच आर ग्रेटर देन 35, विच आर ग्रेटर देन 35। सो फॉर दिस दिस इज द ऑपरेटर। तो ये ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीटीई का मतलब हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी मैं गलत लिख गया वहां, ऐसे लगेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो ये जीटी हो गया, है सिंपल, बहुत टफ नहीं है ये। अब आ गया इन, इनका मतलब क्या हो गया, मैचेस एनी ऑफ द वैल्यूज स्पेसिफाइड इन एन एरे। आपने मोंगो उसमें पढ़ा होगा ना सीक्वल में, इन मतलब 24, 31 कि यहां से अगर मुझे कोई कंपैरिजन करना है तो वो कंपैरिजन कैसे हो रहा है कि लिस्ट के अंदर ये दोनों वैल्यू अवेलेबल है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो सेम चीज यहां हो रही है, मैचेस एनी ऑफ द वैल्यूज स्पेसिफाइड इन एन एरे, ठीक है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंगली इसको लिखना कैसे है, इसको भी वैसे लिखना जैसे हमने बाकी के लिखे हुए हैं। देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इन 35, 42, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लगेगा, db डॉट स्टूडेंट फाइंड, क्या फाइंड करना है, मार्क्स जो कि हो किस लिस्ट के इक्वल, 35, 52। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डॉलर इन, और डॉलर इन का काम क्या होता है, मैचिंग करता है एनी ऑफ द वैल्यूज स्पेसिफाइड इन एन एरे, राइट। जल्दी से यस और नो लिखो चैट बॉक्स में, इफ यू आर क्लियर अप टू हियर एवरीवन। ओके फाइन, फाइन 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 फाइन, ओके राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब होता है एलटी, एलटी का मतलब हो गया लेसर देन, एलटी का मतलब हो गया लेसर देन। अब आगे बढ़ते हैं, इसका मैं दिखा देता हूं बस एक उसमें, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। लेसर देन का मतलब हो गया अगर आपको लेसर देन से रिलेटेड कोई चलनी है, तो अगर ये क्वेरी सीक्वल की है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये क्वेरी किसकी है, मोंगोडीबी की, डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड क्या करने हैं, मार्क्स विच आर लेसर देन 40, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एनई, एनी का मतलब मैचेस ऑल वैल्यूज दैट आर नॉट इक्वल टू स्पेसिफाइड वैल्यू, दैट मींस अगर नॉट इक्वल टू करना है ये वाला काम, तो ये वाला काम आप किससे करोगे मोंगो डीबी में, डॉलर एनी से, ठीक है। लेट्स कम, ठीक है। इफ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स इज नॉट इक्वल टू 35, तो उसका काम आप किससे करोगे, एनी से, डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड मार्क्स एनी। अब देखो, जो आपका इन्फीटीक्यू में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको लिखा होगा यूज समथिंग लाइक दिस, डीबी डॉट क्रिएट समथिंग लाइक दिस, और उसके ऊपर फाइंड मैचिंग इस टाइप के और लिखे। तो आपको सिर्फ कमांड समझनी है और कमांड समझने के बाद तुरंत आप आंसर निकाल सकते हो। ये है मोंगो डीबी, मोंगो डीबी इज वेरी वेरी सिंपल, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एल टी ई मतलब लेसर देन और इक्वल टू, ठीक है। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, लेसर देन और इक्वल टू, ठीक है। इसका काम क्या हो गया, जो मार्क्स लेसर देन और इक्वल टू 40 फाइंड आउट करने हैं इस सीक्वल में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोंगो डीबी में ये कमांड चलानी पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एन आई एन, डॉलर एन आई एन, इसका मतलब क्या हो गया, इनका ऑपोजिट, इसका मतलब क्या हो गया, इनका ऑपोजिट। दैट मींस जब आप सीक्वल में आपने यूज किया होगा नॉट इन, नॉट इन यूज करते हैं ना, नॉट इन का क्या मतलब होना चाहिए, 24, 52, इसका मतलब क्या होना चाहिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा वैसे समझ लो कि इन होना चाहिए कि ये वाली वैल्यू पहले तो मिल जाए 24, 52, ठीक है। और नॉट का मतलब ये वैल्यू ना हो, मतलब इनका मतलब क्या हो गया, मिल जाए, और उसके बाद नॉट का मतलब क्या हो, ना मिले, तो नॉट इन, इनका ऑपोजिट, ठीक है। तो उसके लिए हमने कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, डॉलर एन आई एन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस इज दिस, देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स नॉट इन 35, 42, मतलब सारे मार्क्स हो बस 35 और 42 ना हो, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे ऑपरेटर, डॉलर एन आई एन, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आपने पढ़े होंगे, एंड पढ़ा होगा, ठीक है, और पढ़ा होगा, ऐसे ही पढ़े होंगे ना आप लोगों ने, तो वही चीजें यहाँ पर है, क्वेरीज विद लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, डॉलर एंड रिटर्न्स ऑल डॉक्यूमेंट्स दैट मैचेस द कंडीशन फॉर ऑल द क्लॉजेस, फॉर ऑल द क्लॉजेस। अब जो ये एंड वाला चीज होती है ना, एंड डॉलर, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ठीक है। आगे मैं बता देता हूँ। तो यहां लिखा है कंस्ट्रेंट्स कैन बी अप्लाइड ओवर क्वेरीज टू पिक सेलेक्टेड स्टेटमेंट, कंस्ट्रेंट्स कैन बी अप्लाइड बाय मेकिंग यूज ऑफ ऑपरेटर्स। तो अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेरी क्या गिवन है, फाइंड करो, क्या फाइंड करो, देखो यहाँ पर द
क्या फाइंड करना है हमें? स्टूडेंट नाम की कलेक्शन में से फाइंड आउट करना है ऐसे ऐसे बच्चे, आप जो भी बोल सकते हो, ऐसी एंटिटी जिनके मार्क्स तो हो 35 और ब्रांच हो सीएससी। तो इनको कैसे करना है? दो कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है रिजल्ट, तो उसको किससे यूज करना है? एंड से। तो बस यही सिंटेक्स है इसका, डीबी डॉट स्टूडेंट्स। और अभी आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको करली ब्रेसेस में बहुत डिफिकल्टी आएगी लगाने में, ठीक है? तो मेन मोटिव, मतलब आप क्वेरी तो लिख सकते हो, लेकिन करली ब्रेसेस का जो ओरिएंटेशन है वो बहुत संभाल के लिखना। करली ब्रेसेस की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आपको ध्यान पूर्वक करना है कि अच्छा करली ब्रेसेस कहाँ लगाना है, कहाँ क्लोज करना है। तो देखो, डीबी डॉट फाइंड, और यहां मैं लिख देता हूं क्या लिखना है मुझे। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप ऑपरेटर लगाओगे, एंड ऑपरेटर जब भी लगाओगे तो कैसे लगेगा? एंड ऑपरेटर हमेशा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में। दैट मींस यहां क्या होना चाहिए? एरे होना चाहिए, तभी तो आप दो कंडीशंस में आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो बस ये ध्यान रखो, होना सब कुछ करली ब्रेस से स्टार्ट है, होना सब कुछ करली ब्रेस से स्टार्ट है। एंड लेकिन जो एंड की कंडीशन होती है, एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है, तो उसके साथ दो तीन कंडीशंस मिली हुई होती हैं। तो आप क्या करोगे? एरे से स्टार्ट करोगे, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से। क्या करना है? मार्क्स, और मार्क्स को कैसे? 35, ठीक है, इसको यहां बंद कर दिया। दूसरा क्या है? ब्रांच कितनी होनी चाहिए? ब्रांच होनी चाहिए सीएससी, और इसको यहां क्लोज कर दिया। फिर हमने क्या करा? एरे को बंद कर दिया, और हमने क्या करा? ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट करली ब्रेस लगाया और इस क्वेरी को यहां बंद कर दिया। तो ठीक है, तो एंड इस टाइप से काम करता है। तो जो सीक्वल में आप करते थे ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स इज इक्वल टू 35 एंड ब्रांच इज इक्वल टू सीएससी, वो दी इक्विवेलेंट काम आपका मोंगोडीबी में होगा ऐसे। ठीक है, क्लियर हो गया? एंड जल्दी से बताओ। अब देखो, अब इस जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सॉरी, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा? वो सारे टपल्स रिटर्न हो जाएंगे, या वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न हो जाएंगे जहां पर मार्क्स होंगे 35 और ब्रांच होगी सीएससी। तो सपोज ये आया रिटर्न होके, वन स्टूडेंट्स की जो ये टेबल है इसमें तो आया 102 एलिस 35 सीएससी 4। अब यहां देखो ध्यान से, यहां पर क्या आना चाहिए? नेम आ गया एलएस, मार्क्स आ गए 35, ब्रांच आ गई सीएससी, ईयर आ गया 4, और यहां पर स्टूडेंट आईडी आई गेस मिसिंग है, तो वो मैं लिख देता हूं। स्टूडेंट आईडी हो गया बेटा, कितना हो गया? स्टूडेंट आईडी हो गया 102। अब देखो, इस वाले कलेक्शन के लिए, इस वाले कलेक्शन के लिए आपने क्या किया हुआ है? कोई हाँ, अच्छा, इसमें स्टूडेंट आईडी हो सकता है उसमें मोंगोडीबी में ना हो, तो इसलिए हम नहीं लिख रहे। तो नहीं लिखा होगा, कोई प्राइमरी की नहीं दी ना, क्योंकि आपने अंडरस्कोर आईडी नहीं दिया। तो अगर आप अंडरस्कोर आईडी नहीं देते तो क्या करेगा? प्राइमरी की ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा कंपाइलर। तो ये एग्जैक्टली 12 बाइट की एक हेक्साडेसिमल नंबर है जो इस डॉक्यूमेंट के लिए क्या फील कर रही है? एज अ प्राइमरी की। ठीक है, तो आप इसको 12 बाइट में जाओ मत, बस आपको पता होना चाहिए कि जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, ये जो बड़ा सा ऑब्जेक्ट आईडी फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ये जो नंबर, ये कुछ नहीं है। अगर आपने वहां पर अंडरस्कोर आईडी नहीं दिया, मतलब प्राइमरी की नहीं दी है, तो कंपाइलर आपको एक 12 बाइट का नंबर रिटर्न करके देगा उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए जो उसकी प्राइमरी की तरह एक्ट हो रहा होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा एंड ऑपरेटर। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, ये सब हो गया। अब आता है और, तो और भी एंड की तरह ही काम करेगा, बस डिफरेंस क्या है? एंड में पहली कंडीशन ट्रू है तो सेकंड कंडीशन भी चेक करनी पड़ती है, और में अगर पहली कंडीशन ही ट्रू मिल गई तो सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस ये डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, अब यहां देख लो, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स इज लेस देन 40 और ब्रांच इज इक्वल टू सीएससी। तो उसको कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे, कैसे? फाइंड, और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, यहां पर उसको क्लोज किया, बंद किया, दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ माय एसक्यूएल कमांड इन माय मोंगोडीबी। ठीक है, सो जो भी आउटपुट रिटर्न होगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा, स्टूडेंट टेबल में ऐसे आ जाएगा, और हमारा जो मोंगोडीबी होगा वो क्या करेगा? दो डॉक्यूमेंट को रिटर्न कर देगा। पहला डॉक्यूमेंट ये हो गया और दूसरा डॉक्यूमेंट ये हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। नॉट ऑपरेटर सबको पता है, 1 को 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा, तो वैसे यहां पर भी काम करता है। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल ये हो गया, क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट कलेक्शन से फाइंड आउट करो
वो सारे ब्रांच के बच्चे जिनकी ब्रांच सीएससी ना हो, यही तो बोल रहा है। इक्वल, अब लगाओगे कैसे इसको, देखो सीएससी के इक्वल हो जाए और वो बच्चे जो इक्वल ना हो, यही तो बोल रहा है। सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ऑल दोज स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस स्टूडेंट कलेक्शन वेयर ब्रांच इज नॉट इक्वल टू सीएससी। तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, नॉट यूज करोगे। तो देखो दो डॉक्यूमेंट रिटर्न हुए, एक ये रिटर्न हुआ और एक ये रिटर्न हुआ, जिसमें ब्रांच है आईटी और सेकंड वाले के लिए ब्रांच है एमई। ठीक है, ये हो गया आपका नॉट। अब आता है अपडेट मेथड। ठीक है, अपडेट क्या करेगा, लेट्स सी अपडेट। जैसे हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा, अब हम इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि वो कैसे बनाना है, डेटाबेस कैसे बनाना है, वो हमने यूज से सीख लिया। थोड़ा रिलेट तो कर ले। यूज करके हमने क्या बनाया था, कॉलेज डीबी। ठीक है, लोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूज कमांड क्या करेगी, इसको लोड भी कर देगी। ठीक है, अब इस कॉलेज डेटाबेस के अंदर हमने क्या किया था, एक कलेक्शन बनाया। किससे बनेगा वो, अच्छा, कॉलेज डीबी किस में लोड हुआ है, एक प्लेस होल्डर में। उस प्लेस होल्डर का क्या नाम है, डीबी। अगर आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछता है तो आई गेस सबको आंसर पता होना चाहिए कि डीबी क्या कर रहा है, यूज क्या कर रहा है। मैं दोबारा बता देता हूं, यूज करेगा डेटाबेस बनाना, ए नाम का एक डेटाबेस बना और लोड हो गया। अब उस डेटाबेस को किससे लिंक करना है, प्लेस होल्डर से। वो कहां होगा, डीबी के थ्रू। डीबी डॉट क्या करना है, कलेक्शन बनाना है, तो क्रिएट कलेक्शन। क्या करना है, क्रिएट कलेक्शंस नहीं है, क्रिएट कलेक्शन नाम का मेथड है। सपोज नाम बना दिया हमने A1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस प्लेस होल्डर के अंदर जो A1 नाम का कलेक्शन बना है उसमें इंसर्ट करेंगे एक डॉक्यूमेंट। क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज मैंने इंसर्ट करा नेम, नेम कर दिया मैंने उसका लेट्स सपोज 1 2 3। ठीक है, और हमने क्या इंसर्ट करा, लेट्स सपोज उसका रोल नंबर। तो रोल नंबर हमने इंसर्ट कर दिया उसका सपोज 2। इसको यहां बंद करा, ये बंद हो गया। अब हमने क्या करा, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डीबी डॉट A1 नाम के कलेक्शन से फाइंड करो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। एक ही डॉक्यूमेंट है तो क्या करेंगे, ये लगा देंगे। अब आपने कहा कि फाइंड आउट करो डीबी डॉट A1 से वो बच्चे जिनका रोल नंबर हो 23। तो आप क्या करोगे, डीबी डॉट A1 डॉट फाइंड, क्या लगाओगे जल्दी बताओ, नेम। नेम ही तो फाइंड आउट करना है, नेम फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसके इक्वल होगा नेम, $, इक्वल किसके, 23 के। और यहां क्या कर दोगे, सॉरी यहां रोल नंबर लिखूंगा पहले, रोल नंबर, और उसके आगे मैंने हाइफन लगाया 23, और यहां इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने अभी तक पढ़ ली हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि अगर कुछ भी रन टाइम पे चेंज करना पड़े तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अपडेट यूज करेंगे। अपडेट कैसे करना है, देखो यहां पर डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए भी 3 मेथड है, अपडेट, अपडेट वन और अपडेट मैनी। तो जैसे मैंने आपको वहां बताया था वैसे ही सेम यहाँ है। अपडेट से एक डॉक्यूमेंट भी अपडेट हो जाएगा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी एक साथ अपडेट हो जाएंगे। अपडेट वन क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अपडेट करेगा, टॉप लेवल का। ठीक है, जो सबसे पहले उसको मिलेगा बस उसको अपडेट कर देगा। और अपडेट मैनी क्या करेगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर देगा। मतलब एक को नहीं करेगा, वो जितने उसमें पड़े हुए हैं सारे के सारे को कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें भी हम अपडेट लेके चलेंगे क्योंकि हमारा सारा का सारा काम अपडेट से हो जाता है, तो हम अपडेट ही यूज करते हैं। जब भी आप क्वेरीज देखोगे ना सीक्वल की, नो सीक्वल की, तो आपको कभी भी इंसर्ट वन या इंसर्ट मैनी नहीं मिलेगा, अपडेट वन अपडेट मैनी नहीं मिलेगा। डिलीट में भी ऐसे होता है, तो डिलीट में हम रिमूव यूज करते हैं। तो आप बस 3 याद रखो, इंसर्ट, अपडेट और रिमूव। तो अपडेट हम पढ़ रहे हैं, तो अपडेट में पहली जाएगी क्वेरी, और क्या अपडेट करना है, और ऑप्शंस। ऑप्शंस जो है क्या है, यहां पर भी ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ऑपरेटर देख लो इसके। सो ये आईएनसी जो ऑपरेटर है ये बोलता है इंक्रीमेंट। क्या बोलता है, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द फील्ड बाय द स्पेसिफाइड अमाउंट। तो जो जो आप वहां पर C++ में करते थे ना, A++, वही काम यहाँ डॉलर इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं, डॉलर मिनिमम। ये क्या कर रहा है, ओनली अपडेट्स द फील्ड इफ द स्पेसिफाइड वैल्यू इज लेस देन द एग्जिस्टिंग फील्ड वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपने कहा कि 50 से कम होनी चाहिए वैल्यू, तो वो अपडेट कर दो कैसे, डॉलर मिनिमम से। डॉलर मैक्स मिनिमम का ऑपोजिट हो गया, और मल हो गया मल्टीप्लाई, मल हो गया मल्टीप्लाई। अब
जो बहुत बेसिक ऑपरेटर्स है वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं जो क्लासेस में कवर अप करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि जो मोंगोडीबी की जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें सीक्वल से मिली है वो बहुत बड़ा है। तो जो जो चीजें इन्फीटीक्यू में पूछी जाती हैं वही वही चीजें हम लोग यहाँ प्रेफर कर रहे हैं, ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए कि हम क्वेश्चंस एटलीस्ट सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेट ऑपरेटर। तो सेट ऑपरेटर क्या करेगा? सेट द वैल्यू ऑफ अ फील्ड इन अ डॉक्यूमेंट। जैसे अपडेट सेट करते थे ना, वैसे ही यहाँ पर ये सेट काम करेगा। चलो इसका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो, पहली चीज यहाँ पर देखो, हमें क्या करना है? स्टूडेंट में अपडेट करना है। क्या करना है? स्टूडेंट्स अपडेट। ठीक है, db.students.update। अब जो अपडेट करना है, तो क्या अपडेट करना है? अपडेट करनी है कौन सी वाली आईडी? जहां पर प्राइमरी की होगी 106। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं db.students। ठीक है, और बहुत ध्यान से सुनना ये चीज, अपडेट। और क्या अपडेट करना है? हमको अपडेट करनी है वो वाली आईडी जिसकी आईडी है 106। और इसमें क्या अपडेट करना है? इसमें अपडेट करना है ये कि सेट कर दो। क्या कर दो? सेट। जहां पर भी ब्रांच हो वहां कर दो आईटी सेट, और जहां पर भी मार्क्स हो वो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स नाम के कलेक्शन में अपडेट नाम का मेथड चलाया, और वो क्या कर रहा है? 106 वाले प्राइमरी की के जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो ब्रांच है उसको सेट कर रहा है आईटी, और जो मार्क्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहा है 2 के साथ। तो यही यहां लिखा हुआ है, सेट द ब्रांच टू आईटी एंड मल्टीप्लाई द मार्क्स विद 2 फॉर द डॉक्यूमेंट हुज आईडी इज 106। सो लेट्स सी द फर्दर एक्सप्लेनेशन। तो देखो क्या होगा, ये मेरा डॉक्यूमेंट है जिसमें कितने डॉक्यूमेंट्स है? कलेक्शन है जिसमें मेरे पास 4 डॉक्यूमेंट है। एक ये है, एक ये है, और एक ये है। इसमें है प्राइमरी की 106। इन दोनों में कोई भी प्राइमरी की नहीं है। इन दोनों को प्राइमरी की कौन देगा? कंपाइलर। नो सीक्वल का कंपाइलर, 12 डिजिट का, 12 बाइट का हेक्साडेसिमल नंबर। क्योंकि यहां पर स्टूडेंट आईडी लिखी हुई है, अंडरस्कोर आईडी नहीं लिखा। अंडरस्कोर आईडी किसके पास है? इसके पास। तो वो इसी के पास जाएगा। वो क्या करेगा? नेम को कर देगा जॉन, ऑलरेडी है। मार्क्स है 42, तो इनमें 2 मल्टीप्लाई कर देगा। कितने हो जाएंगे मार्क्स? 84। ठीक है, ब्रांच को मैकेनिकल की जगह क्या सेट कर देगा? आईटी, और ईयर हो जाएगा 3। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म अपडेशन। आई होप इट इज क्लियर। ओके, ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंगली वो देख लो, एक कमांड सीक्वल में कैसे चलती है। कमांड यही होता है ना, अपडेट करो टेबल और सेट कर दो ब्रांच इज इक्वल टू आईटी, मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स मल्टीप्लाई 2 वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 106। तो बस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या करा? ये लिख दिया। ठीक है, अब हम तो फैमिलियर हो गए क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इनका सबका मतलब क्या चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी वही काम हो रहा है। अब वो क्या कर रहा है? ब्रांच को सेट कर रहा है मैकेनिकल, और नेम क्या सेट कर रहा है? एलन। तो मतलब अगर आपको कोई भी अपडेशन करनी है तो वो आप सेट में लिखोगे। किस में लिखोगे? सेट में। मल्टीप्लाई में आपने क्या करा? मार्क्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और ईयर को इंक्रीमेंट कर दो 1 से। किससे कर दो? 1 से इंक्रीमेंट। आगे बढ़ते हैं। तो यही हुआ। क्या करा? जहां पर प्राइमरी की होगी 106 वहां पर नेम कर दो जॉन की जगह एलन, मार्क्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दो 84 हो गए, ब्रांच कर दो मैकेनिकल ऑलरेडी है, और ईयर कर दो 1 से इंक्रीमेंट। इनिशियली कितना था? 3, अब कितना हो गया? +1 करके 4। सो दिस इज माई हाउ वी कैन परफॉर्म मोर देन 1 अपडेशन इन सेट। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगी, सेट नेम इज इक्वल टू एलन, ब्रांच इज इक्वल टू मैकेनिकल, मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 2, ईयर इज इक्वल टू ईयर +1 वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 106। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब यहां तक आ गए हम लोग। ओके, अब देखो यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, और क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए ना एक नया पैरामीटर डाल दिया उन्होंने, मल्टी ट्रू। अब इसको ध्यान से सुनना सारे बच्चे। क्या लिखा हुआ है यहां पर? मैंने लिखा है बाय डिफॉल्ट द मेथड अपडेट्स द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट मैचेस द गिवन क्वेरी क्राइटेरिया। फिर से मैं पढ़ देता हूं। बाय डिफॉल्ट द मेथड अपडेट्स द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट मैचेस द गिवन क्वेरी क्राइटेरिया, इंक्लूड ऑप्शन मल्टी ट्रू to update all documents that match the query criteria, not that multi has no $sign। क्या समझ में आ रहा है इससे? इससे ये समझ में आया कि
अगर आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं यहां लिख देता हूं, सपोज आपके पास है नेम है, लेट्स सपोज कुछ भी ए, और ये बहुत सारी जगह फील्ड्स हैं, पहले डॉक्यूमेंट में भी नेम ए है, दूसरे डॉक्यूमेंट में भी नेम ए है, तीसरे डॉक्यूमेंट में भी नेम ए है, और चौथे डॉक्यूमेंट में भी नेम आपका है ए। दैट मीन्स एक कलेक्शन है, उस कलेक्शन के अंदर बहुत सारे नेम हैं और सबका नाम क्या है, ए। तो अगर अपडेट नाम की कमांड बिना मल्टी पैरामीटर के चलेगी तो वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट सारे डॉक्यूमेंट में से जो सबसे पहला वाला डॉक्यूमेंट मिलेगा ए नाम का, उसको ही अपडेट करके बाहर निकल आएगा, उसको ही क्या करेगा, अपडेट करके बाहर निकल आएगा। तो क्या होगा, डेटाबेस में तो रिडंडेंसी आ जाएगी। तो उस रिडंडेंसी को ना हम अप्लाई करते हुए तो हम क्या करेंगे, एक नया एट्रीब्यूट असाइन कर रहे हैं मल्टी, और जिसकी वैल्यू हम रखेंगे ट्रू। ये एक्सप्लिसिट करना पड़ता है, इम्प्लिसिट नहीं होगा ये, जिसकी वैल्यू हम रखेंगे ट्रू। जैसे ही आपने मल्टी मोड को ट्रू कर दिया तो अब क्या करेगा, वो सारे के सारे नेम को अपडेट कर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए मल्टी को नहीं भी देते और मल्टी को भी दे देते। तो इसका जिस्ट क्या समझ में आया कि अगर मल्टी ट्रू नहीं है तो चार डॉक्यूमेंट अगर अपडेट करने के लिए दिए हैं तो जो सबसे पहला हेडर में मिल जाएगा उसको, टॉप हेडर में उस अपडेशन के रिस्पेक्ट में, तो वो सिर्फ उसी को अपडेट करके बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर मल्टी का ऑप्शन आपने ट्रू रखा है तो वो क्या करेगा, उस रिस्पेक्ट में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की वैल्यूज को चेंज कर देगा। अप टू हियर एनी कंफ्यूजन, से यस और नो इन द चैट बॉक्स। तो मल्टी को एमसीक्यूज में, इन्फिटीक्यू के एमसीक्यू में मल्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे आपका आंसर गड़बड़ हो सकता है, आप सोच रहे होंगे कि सही है आंसर, लेकिन वो सही नहीं है क्योंकि मल्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। डिलीट, ठीक है, नाउ वी हैव दिस डिलीट। डिलीट क्या करता है, हमने सारी चीजें पढ़ ली, हमने फैचिंग करना भी देख लिया, हमने अपडेट करना भी सीख लिया, हमने इंसर्ट करना भी सीख लिया, हमने डेटाबेस बनाना भी सीख लिया, हमने कलेक्शंस बनाना भी सीख लिया, हमने डॉक्यूमेंट बनाना भी सीख लिया। अब हम देखते हैं कि डिलीट कैसे करना है। ठीक है, तो डिलीट भी बहुत सिंपल है। डिलीट के भी तीन ऑप्शन है, डिलीट वन, डिलीट मैनी और रिमूव। तो ना मैं डिलीट वन यूज करना, मैं डिलीट मैनी, क्योंकि मोंगो डीबी के क्वेश्चंस में हमेशा वो जनरलाइज वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे यूज सिर्फ रिमूव, तो हमारा मेन फोकस रहेगा रिमूव पे। ठीक है, तो रिमूव का जो सिग्नेचर है वो कैसा है, डीबी डॉट कलेक्शन नेम। तो हम तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का कलेक्शन लेके चल रहे हैं, तो इस स्टूडेंट के कलेक्शन में से मुझे क्या करना है, कुछ डिलीट करना है, और उसके लिए मैंने मेथड यूज किया है रिमूव। तो यहाँ पर क्वेरी चलेगी और जस्ट वन, जस्ट वन होता है ऑप्शनल। ठीक है, जस्ट वन होता है ऑप्शनल। अब ये क्या ऑप्शनल है ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अब आगे यहां लिखा हुआ है कि स्टूडेंट नाम में से, स्टूडेंट्स नाम के कलेक्शन में से रिमूव करो, क्या रिमूव करो, उन सब डॉक्यूमेंट्स को जहां पर ईयर होगा लेस देन 4। क्या होगा, ईयर लेस देन 4। तो नीचे क्या लिखा है, इट विल डिलीट ऑल द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स कलेक्शन वेयर द वैल्यू इज लेस देन 4। यही करेगा ये, हाँ यही करेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, कहां कहां उसको लेस देन 4 मिला, लेस देन 4 एक तो यहां है, एक लेस देन 4 यहां है, तो वो क्या करेगा, इसको भी डिलीट कर देगा और इसको भी रिमूव कर देगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर ये बच जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत सिंपल है भाई, इसमें कुछ थोड़ी लिखा है मैंने, रिमूव करना है, क्या करना है, वो वाले डॉक्यूमेंट जहां पर ईयर हो, एलटी का क्या मतलब है, लेस देन, किससे लेस देन, 4 से लेस देन। ठीक है, लेस देन 4, तो ये दोनों रिमूव हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो, अच्छा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मुझे एसक्यूएल में इसकी कमांड चलानी तो क्या लिखूंगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ईयर इज लेस देन 4, यही चलेगा। और इसके इक्विवेलेंट ये मेरी हो गई मोंगोडीबी की क्वेरी। ठीक है, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट रिमूव ईयर लेस देन 4। आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहां पर भी एक नया कंसेप्ट आ गया ट्रू नाम का। ये क्या करेगा, इट विल डिलीट फर्स्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स कलेक्शन वेयर द वैल्यू ऑफ नेम इज एलन। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर आपने लिखा इसके बिना तो बाय डिफॉल्ट, हम यहां मल्टी नहीं यूज हो रहा, ये ध्यान रखना, सिर्फ ट्रू और फॉल्स। एक 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 देखो यहां लिखा था ना जस्ट वन, मैंने लिखा था जस्ट वन, जस्ट वन एक पैरामीटर है, वो ट्रू हो सकता है और फॉल्स हो सकता है, मल्टी के साथ नहीं, फॉल्स हो सकता है या ट्रू हो सकता है ओनली इन द केस ऑफ डिलीट। तो बाय डिफॉल्ट हम उसको फॉल्स मान के चलते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे ना तो वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। फॉल्स का मतलब है अगर जहां जहां उसको एलन नाम मिलेगा वो सारी की सारी चीजें वहां उसको डिलीट कर देगा, जहां जहां पर भी उसको
एलन मिलेगा, वो सारी की सारी चीजें क्या कर देगा, उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। और अगर आपको करना है कि सिर्फ टॉप हिरार्की का ही डॉक्यूमेंट डिलीट हो, टॉप हिरार्की का ही डॉक्यूमेंट डिलीट हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेंशन जस्ट वन एस ट्रू, जस्ट वन एस ट्रू। तो जैसे आपने ट्रू करा, इट विल डिलीट फर्स्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द स्टूडेंट कलेक्शन वेयर द नेम ऑफ वैल्यू ऑफ नेम इज एलन, दैट्स इट, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ट्रू। बाय डिफॉल्ट जस्ट वन इज फॉल्स इन माय डिलीट। जल्दी से यस या नो इन द चैट बॉक्स में टाइप करो। तो क्या होगा, एलन नाम ट्रू किया, तो एलन उसको कहाँ मिला, यहां मिला और यहां मिला, दो जगह मिला एलन, लेकिन क्योंकि फील्ड कैसा है, ट्रू है, और ट्रू के केस में क्या करेगा, उसको जो भी नंबर 1 पे मिल जाएगा डॉक्यूमेंट, उसी को वो डिलीट कर देगा। तो वो क्या करेगा, इसको डिलीट कर देगा और इसको कंटेन करके रखेगा। तो स्टूडेंट आईडी 107, नेम हो गया एलन, मार्क्स 82, ब्रांच एमी एंड ईयर 4, ठीक है। अब नो सीक्वल में क्या करते थे, नो सॉरी सीक्वल में डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम इज इक्वल टू एलन एंड स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 105, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया। तो MongoDB में क्या चल रहा है और SQL में क्या चल रहा है, तो अगर आपको मैं साइमल्टेनियसली नहीं दिखाता तो हो सकता था आपको कंफ्यूजन हो सकता था। तो लेकिन अभी क्लैरिटी आ रही है कि अच्छा, अगर ये चीज SQL में ऐसे हो रही है तो MongoDB में सेम चीज ऐसे हो रही है।